بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چلیے تفسیر جلالین دیکھیے کہ تفسیر جلالین میں کل بیان ہوا کفار کے بارے میں، کہ وہ ان کفار کے بارے میں کہ جن کو ڈراتے ہو لیکن جن پر مہر لگا دی گئی ہے، جو کفر سے باز ہی نہیں آتے، کفر ہی پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کفار کے بارے میں کل بیان ہوا۔ اور بیان ہوا آخر میں کہ ان کو ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں یکساں ہے، برابر ہے۔ ان کو ڈراؤ تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، نہیں ڈراؤ تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ محصل تھا۔ اس کے بعد اگلا سبق دیکھیے، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ختم اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، طبع علیہا ان پر مہر لگا دی، طبع علیہا اس پر مہر لگا دی، مہر لگا دیا ان پر، مہر لگا دی یعنی کہ علیہا میں جہاں ضمیر ہے یہ قلب ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، علی پر ہا قلب پر، طبع علیہا ان کے قلب پر مہر لگا دی، واستوثقا فلا يدخلها خیر اور مضبوط کر دیا، واستوثقا اور مضبوط کر دیا، فلا يدخلها خیر تو خیر بھلائی اچھائی، خیر کا معنی بھلائی اچھائی۔ تو دیکھیے اب واستوثقا اور مضبوط کر دیا، یہاں سے پیچھے کا ترجمہ، طبع علیہا ان پر مہر لگا دیا، واستوثقا اور مضبوط کر دیا، فلا يدخلها خیر تو اب ان میں کوئی بھلائی داخل نہیں ہوگی، فلا يدخلها خیر تو اب ان میں کوئی بھلائی داخل نہیں ہوگی۔ وعلی سمعہم اس کا بھی پیچھے والی عبارت سے مطلب ہے، یعنی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر یعنی کہ ان کے سننے پر۔ تو اب سننے کی تشریح کر رہے ہیں، ای مواضعہ یعنی اس کی جگہ پر، جو سننے کی جگہ ہے، سننے کی جگہ کیا ہے؟ کان، یعنی کہ کان پر مہر لگا دی، سننے پر مہر نہیں لگائی۔ کوئی کہے کہ وہ سنیں گے نہیں، بہرے ہیں، اس پر مہر نہیں، بہرا نہیں کیا انہیں، بلکہ وہ سن رہے ہیں لیکن ان کی کان سننے کی جو جگہ ہے اس پر مہر لگا دی۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب ابھی بعد میں بیان ہوئے گا، دیکھو، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق، فلا ينتفعون تو وہ نفع نہیں اٹھائیں گے حق کو سننے سے، حق کو سننے سے یا حق کو سننے کے بعد حق سے نفع نہیں اٹھائیں گے، وہی کہہ رہے ہیں، فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وہ حق بات سن کر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے بعد پھر دیکھیے، وعلی ابصارہم غشاوہ اس کا بھی پیچھے والی عبارت سے تعلق ہے، مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ اور مہر لگا دی ان کی بصیرت پر، بصیرت بولے دیکھنا، تو یہاں یہ نہیں کہنا انہیں اندھا کر دیا، دیکھنے سے ہی ختم کر دیا، بلکہ جو دیکھنے کی جگہ ہے آنکھ اس پر، یہی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، یعنی گھٹا ٹوپ ہے، مہر لگا دی حق کو نہ دیکھنے کی، یعنی کہ حق کو دیکھ کر کے وہ پہچان نہ سکیں، اس بات کی مہر لگا دی، یہ کہہ رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے، غشاوہ، غطاء فلا یبصرون، غطاء فلا یبصرون تو ابصارہم غشاوت ان کی یہ تفسیر کر رہے ہیں، دیکھو پردہ ہے، غطاء پردہ ہے، غطاء کا معنی پردہ ہے، فلا یبصرون الحق تو حق نہیں دیکھ سکتے، فلا یبصرون تو وہ نہیں دیکھ سکتے یا نہیں دیکھ پائیں گے حق کو، فلا یبصرون الحق تو وہ حق کو نہیں دیکھ سکتے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک بڑا عذاب۔ قوی اب عظیم کی تشریح کر رہے ہیں، عظیم بڑا عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، تو قوی دائم کہہ رہے ہیں، قوی اور دائمی عذاب ہے، مطلب دیکھو قوی اور دائمی۔ اس کے بعد دیکھیو اب تشریح کا خلاصہ، مفسر علیہ الرحمٰن نے ختم اللہ علی قلوبہم کی تفسیر میں کہا طبع علیہا،
تو तबा अलैहा ये कहा, तो इस तबा अलैहा से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तबा अलैहा से ख़तमा के माने लुग़वी की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं मुफस्सिर अलैहि रहमा। ख़तमा के माने लुग़वी की तरफ इशारा है। क्या इशारा है? इशारा यह है कि ख़तमा का माना है मोहर लगाकर मजबूत कर देना। ख़तमा का माना मोहर लगा देना, मजबूत कर देना, ये इसका हकीकी माना है। ख़तमा का माना मोहर लगा देना, मजबूत कर देना, बंद कर देना, इसका हकीकी माना ये है। लेकिन यहाँ पर हकीकी माना मुराद नहीं, मुफस्सिर अलैहि रहमा कहना ये चाह रहे हैं, देखो इसका हकीकी माना मुराद नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि हकीकतन अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। हकीकतन अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर तो लगाई है, लेकिन इस तरह मोहर नहीं लगाई जिस तरह जो आदमी जहन में आए, बल्कि वही मुफस्सिर अलैहि रहमा बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों और कानों पर इस तरह मोहर लगा दी है जैसे किसी चीज़ को महर बंद कर देते हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, उनकी समाअत पर मोहर लगा दी है जैसे किसी चीज़ को महर बंद कर देते हैं। ये सचमुच उनकी आँख पर पर्दा डाल दिया है, ये या सचमुच उनकी आँख पर पर्दा डाल दिया है, ऐसा नहीं है। बल्कि इससे मुराद क्या है, देखो सुनो, बल्कि इससे मुराद कुफ़ार की वो कजरवी यानी कि हक़ से दूर भागना, हक़ को छोड़ना, ये देखो, बल्कि कुफ़ार की वो कजरवी और सरकशी है। कुफ़ार की वो कजरवी और सरकशी है क्या, कि जिसके सबब उनके दिलों से कबूल हक़ यानी हक़ को कबूल करने की इस्तेदाद ख़त्म हो गई है। इससे मुराद क्या है ख़त्म से? ऐसा नहीं है कि ख़त्म अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर, उनकी समाअत पर इस तरह मोहर लगा दी कि सभी कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ है। लेकिन जो इससे मुराद है, इससे मुराद वो ये है कि वो हक़ को कबूल करने की इस्तेदाद ख़त्म हो गई, हक़ को सुनने की इस्तेदाद ख़त्म हो गई, हक़ को देखने की इस्तेदाद ख़त्म हो गई, वो यहाँ पर ख़त्मा से मुराद है। तो यही कहना चाह रहे हैं। तो कुफ़ार की इसी हालत को कुरान करीम ने ख़त्मा से ताबीर फरमाया, कुरान करीम ने ख़त्मा से ताबीर फरमाया इस हालत को, और ये इस्तिआरा है, ये ख़त्मा जो है ये इस्तिआरा है। अब इस्तिआरा देखो कैसे, तो देखिए इस्तिआरा ये इस तरह है कि ख़तमल्लाहु से ग़िशावतुन तक, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, तो यहाँ ग़िशावा तक कह रहे, ख़तमल्लाहु से ग़िशावा तक की इबारत मा क़ब्ल के दावे की दलील है। यानी मा क़ब्ल का क्या दावा था, मा क़ब्ल में जो दावा था कि उनके लिए उन्हें डराना ना डराना ये दोनों बराबर हैं, तो ये जो दावा था तो ये दावे की दलील है, दावे की दलील है, जिसका माहसल ये है कि हक़ की मार्फत तीन ज़रायों से होती है, हक़ की मार्फत तीन ज़राओं से होती है, यानी तीन तरह से होती है, इस तरह कह लीजिए। वो तीन ज़राए क्या हैं जिनके ज़रिए होती है, जिन तीन के ज़रिए होती है, या तो अक़्ल के ज़रिए होती है, या आँख के ज़रिए होती है, या कान के ज़रिए होती है। अक़्ल के ज़रिए हक़ की जो मार्फत होगी, हक़ की जो पहचान होगी अक़्ल के ज़रिए, वो गौर फ़िक्र करके हक़ की पहचान हो जाएगी। और आँख से मुअजिज़ात और रोशन दलाइल, जो ज़ाहिर दलाइल हैं, वो देख कर के आँख से हक़ का कबूल कर लेगा। उसके बाद कहा तीसरे नंबर पर सुनकर, तो पैगाम हक़ सुनकर हक़ को कबूल कर लेगा। तीन ज़राए हैं, तीन ज़राए, या तो अक़्ल के ज़रिए, अक़्ल सोच समझ करके अक़्ल के ज़रिए हक़ को कबूल कर लेगा, या देख करके हक़ को कबूल कर लेगा, रोशन दलीलें जो हैं उनको देख करके कबूल कर लेगा, या पैगाम हक़ जो हक़ के पैगाम हैं सुन करके उनको हक़ को कबूल कर लेगा। तीन ज़राए हैं। मगर ये जो अज़ली कुफ़ार हैं, कि इनके दिल और कान पर मोहर है और आँख पर मोहर है, इनके दिल और आँख पर पर्दा है, तो ये इनके लिए हक़ कबूल हक़ यानी हक़ को कबूल करने के तीनों ज़राए मसदूद हैं, तीनों ज़राए मसदूद हैं, इनके लिए तीनों ज़राए मसदूद हैं, इसलिए इन पर हिदायत का असर ना होगा। हिदायत करो इनको, डराओ ना डराओ, ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए इन पर हिदायत का असर ना होगा। तो इन्हें डराना ना डराना दोनों बराबर हैं, कहना ये चाह रहे हैं। जो पीछे कहा कि इनको डराना ना डराना दोनों बराबर हैं, तो वही उसी की ये दलील है जो कि आपके सामने बयान हो गई।
उसके बाद देखिए मुफस्सिर अलैहिर्रहमा ने कहा आई मवाज़िही, मवाज़िही कहा समईहिम की तफसीर में, मवाज़िही। तो ये मवाज़िही हज़फ़ मुज़ाफ़ की तरफ इशारा है, यानी कि मुज़ाफ़ यहाँ पर हज़फ़ है, जो मुज़ाफ़ हज़फ़ कर दिया गया है उस मुज़ाफ़ हज़फ़ की तरफ इशारा है। इशारा क्यों? चूँकि समा एक मानवी क़ुव्वत का नाम है, यानी कि एक क़ुव्वत का नाम समा है, सुनना एक क़ुव्वत का नाम है, जो कि क़ुव्वत रब तबारक व तआला ने इंसान को दी है सुनने की, उसी क़ुव्वत का नाम समा है। तो जो कानों के सुराख के अंदर रख दी गई है उसका नाम, जो कानों के सुराख के अंदर रख दी गई है उसका नाम समा है। तो उसी की तरफ ख़त्मा की निस्बत दुरुस्त नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, उसकी तरफ जो कानों के अंदर रख दी गई है समा, उसकी तरफ कानों की निस्बत दुरुस्त नहीं। लिहाजा मुफस्सिर अलैहिर्रहमा ने मुज़ाफ़ महज़ूफ़ माना, मुज़ाफ़ महज़ूफ़ माना, उसकी तक़दीर पर ख़त्मा की निस्बत मवाज़िअ है, उसकी तक़दीर पर ख़त्मा की निस्बत मवाज़िअ समा की तरफ होगी, यानी मवाज़िअ समा की तरफ होगी जिन पर मोहर लग सकती है, जिन पर मोहर लग सकती है। उसके बाद मुफस्सिर अलैहिर्रहमा ने अल-ग़िता कहा। तो ये लफ्ज़ ग़िशा का माना लुग़वी है, ग़िशा का लुग़वी माना है, यानी ग़िशावतुन का माना है, ग़िशावतुन का लुग़वी माना है। तो ये देखिए वो चीज़ जिससे किसी चीज़ को ढांक दिया जाए, जिससे किसी चीज़ को ढांक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, उसको ग़िशा का माना है। तो उसका लाज़मी नतीजा ये होता है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो सकती। जिस चीज़ को ढांक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, अब बंद करने के बाद में उसमें कोई चीज़ अंदर उसके अंदर कोई चीज़ बाहर से दाखिल नहीं हो सकती। तो यहाँ ग़िशावतुन का भी लुग़वी माना मुराद नहीं है। ग़िशावतुन का लुग़वी माना तो ये है कि वो ढांक देना, बंद कर देना, बाहर से कोई चीज़ दाखिल ना हो, लेकिन यहाँ पर लुग़वी माना मुराद नहीं है, बल्कि कुफ़ार के दिलों तक नूर इस्लाम का ना पहुँचना मुराद है। कुफ़ार के दिलों तक, यानी कि उनके दिलों तक, दिल में ऐसा नहीं है कि दिल में अंदर दाखिल नहीं होगा, अगर वो चाहें तो दिल में दाखिल तो हो सकता है, रब तबारक व तआला ने, ये तो नहीं, बल्कि उनके दिलों में दाखिल तो हो सकता है, लेकिन कहना ये चाह रहे हैं कि इसका लुग़वी माना मुराद नहीं, बल्कि उनके दिल में नूर इस्लाम का पहुँचना तो मुराद है, यानी उनके दिल में नूर इस्लाम का पहुँचना तो मुराद है, बल्कि वो कबूल करने वाले नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर ये कहा, ये कहना चाह रहे हैं। यानी कि ऐसा समझ लीजिएगा कि यहाँ लाजिम बोल करके मज़लूम मुराद लिया गया है, यहाँ लाजिम बोल करके मज़लूम मुराद लिया गया है। उसके बाद देखिए कवियुन दाइमुन कहा, आखिरी अज़ीम की तशरीह में कहा मुफस्सिर अलैहिर्रहमा ने कवियुन दाइमुन। तो ये कवियुन दाइमुन एक शुबह का इज़ाला है, यानी कि एक शुबह को ज़ाइल करना चाहते हैं। तो वो शुबह क्या है? देखो, किसको ज़ाइल करना चाहते हैं कि अज़ीम अजसाम की सिफ़त, यानी कि जो अज़ीम अजसाम की सिफ़त वाक़ होती है, अज़ीम जो है अजसाम की, जिस्मों की सिफ़त वाक़ होती है, जैसे कि लहा अर्शुन अज़ीम, जैसे कि लहा अर्शुन अज़ीम, तो इसमें अज़ीम अर्श की सिफ़त है। तो ये अर्श अजसाम है, जिस्म है, तो ये इसकी सिफ़त वाक़ हुई। तो यही बताना चाह रहे हैं, लहा अर्शुन अज़ीम में अज़ीम अर्श की सिफ़त है जो जिस्म है, और अज़ाब एक मानवी चीज़ है, अज़ाब जो है वो एक मानवी चीज़ है, जिस्म नहीं है, मानवी चीज़ है। तो लिहाजा अज़ाब की सिफ़त अज़ीम लाना दुरुस्त नहीं। ये शुबहा है, ये शुबहा क्या शुबहा है? शुबहा ये है कि अज़ीम जो होती है वो अजसाम की सिफ़त होती है, और अज़ीम अजसाम की सिफ़त होती है, जैसे कि लहा अर्शुन अज़ीम मिसाल दे करके बता दिया। तो यहाँ पर लेकर के आए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब की सिफ़त लेकर के आए अज़ीम को, और अज़ाब जो है ये मानवी चीज़ है, जिस्म नहीं है, तो लिहाजा अज़ाब की सिफ़त अज़ीम का लाना दुरुस्त नहीं, ये शुबहा है। तो इस शुबहा का देखो जवाब क्या है? इस शुबहे का जवाब ये है कि आयत में लफ्ज़ अज़ीम कवी दाइम के माना में है। अज़ीम जो लफ्ज़ है वो बुलंदी के माना में नहीं, बल्कि अपने लुग़वी माने में नहीं, बल्कि अज़ीम जो है वो कमी
قوی اور دائم کے معنی میں ہے، اور یہ معنی کی صفت واقع ہوتی ہے، معنی کی صفت یہ واقع ہوتی ہے کیا؟ قوی اور دائم، یعنی کہ طاقتور ہونا، زیادہ پختہ ہونا، اور دائم یعنی ہمیشہ ہمیشہ، تو عذاب ہمیشہ ہمیشہ تو ہوگا، اس پر تو سبھی کا ایمان ہے، تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ تو محترم سامعین اکرام، یہ ہوا آج کے سبق کا خلاصہ، آج کے سبق کا ما حصل۔ اس کے بعد یہاں سے منافقین کے بارے میں بیان شروع ہو رہا ہے، جو کہ منافقین کا پورا بیان انشاءاللہ کل بتایا جائے گا، کل سمجھایا جائے گا۔